Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, this is my first video on the Unacademy Judiciary channel. I hope everyone is aware of who I am. I've been teaching on the UPSC channel of Unacademy for the last 5 years with millions and millions of watch minutes. And I've been teaching polity, governance, international relations, and PSIR. Now, since I am a practicing lawyer in the Supreme Court, right, I was asked to make these videos and I think I'll be able to add something to the value of you preparing for your judiciary examination. तो ये मेरा so called the first debut है, okay, on the Unacademy Judiciary channel and I hope कि तुम्हें ये काम का आए video and I hope to add something to whatever knowledge that you already have. So the topic that I chose this time was a very interesting topic and an interesting topic in such a way that अगर आपको ये एक topic समझ में आ जाता है, you will be able to understand the intricacies and the nuances of Article 21 and the various natural rights जो कि Supreme Court हमेशा observe करता है when they are passing these very supposedly landmark judgments. Now these landmark judgments of the Supreme Court में आज जो topic मैंने choose किया है, it deals with or it revolves around what is called as right to die. बड़ा ही interesting topic है. And since you are judiciary aspirants, you must have that kind of awareness and that kind of subject control कि आपको ये बड़ा ही sensitive matter समझ में आए. So you're going to have fun, I'm sure, right? And you're going to enjoy it. Make sure कि आप इसके notes बनाओ और make sure कि आप comment section में डालो that what are your views about this topic. It's a very interesting topic. Let's pay close attention. And मैं तुम्हें ये promise करता हूँ कि at the end of this session आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा. इनफैक्ट यू विल बी एबल टू डिस्कस इट इन द हाईएस्ट कोर्ट्स आल्सो. बड़ा मजा आएगा. लेट्स हैव फन ऑन दिस पार्ट. सो बिफोर आई स्टार्ट, ऑलराइट, दिस इज अ मेजर अनाउंसमेंट. यू हैव टू you can unlock your part to selection. You have 50% off on all judiciary subscription. So this offer is available till 18th of May. Right? Use the code SIDLIVE and join this, and you will be in a very good position to join this. तुम्हें मालूम the best of the best educators teach on Unacademy. Make sure that you make the best of it. Don't forget to use my code SIDLIVE. So topic यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि why did I teach all this or why am I taking this? Alright, so recently current affairs में आया, so creditlivelawlaw.in. Okay, it says right to die. Supreme Court makes it easier for persons to opt for passive euthanasia. Simplifies 2018 guidelines on living will or advance directive. भगवान जाने इतना खतरनाक heavy loaded part होती है of the entire news and how do people miss it? Okay, it is a beautiful headline. It is a target rich environment. आप इसमें से क्या क्या नहीं पढ़ सकते. You can actually understand the entire situation. Right to die समझ में आता है इसमें. Then makes it easier for persons to opt for passive euthanasia. Okay, ये passive euthanasia एक और टॉपिक है. ये easier कैसे हो गया? Simplified 2018 guidelines 2018 में क्या था, लिविंग विल क्या है, एडवांस डायरेक्टिव क्या है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. मेरे ख्याल से एक पूरा सिलेबस ही ये सामने ये एक हेडलाइन हो सकती है. सो लेट्स पे क्लोज अटेंशन और एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट. सो ये वैसे ही एक और है, राइट टू डाई विद डिग्निटी ऑफ फंडामेंटल राइट. इनफैक्ट ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हेडलाइंस हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट अलाउज पैसिव यूथेनेसिया एंड लिविंग विल इशूज गाइडलाइंस. ये 2018 की जजमेंट है और ये वाली जो न्यूज है ये 2023 में. क्या हुआ 5 साल में? व्हाट आर वी डिस्कसिंग, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लेट्स पिक एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट. सो राइट टू डाई समझने के लिए सबसे पहले आपको आर्टिकल 21 समझना पड़ेगा. सो जस्ट पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट आर्टिकल 21 इज. तो हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो को सीक्वेंशियली करेंगे. सो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहले आर्टिकल 21, फिर समझेंगे कि डज इट एनकम्पस विद इन इटसेल्फ राइट टू डाई. Then we'll understand what is living will, living with dignity, and the very famous landmark case of Aruna Shanbag case. So pay close attention. Article 21 क्या बोलता है? Article 21 says no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. Simple सी लाइन. मैंने फिर से बोला, no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. If you pay close attention, the word जहां पर बड़ा clearly आया वो आया लाइफ. राइट नाउ ये आर्टिकल 21 में ओरिजिनली लिखा हुआ था. 1978 में एक जजमेंट आई विच वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज द मनेका गांधी केस. मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड लाइफ को इंटरप्रेट किया, उसकी वाइड इंटरप्रिटेशन की, और वो वर्ड बन गया लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. द वर्ड बिकम्स life is living with choice and dignity. Fair enough.
सो लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। ये पॉइंट याद रखना और ये कहीं पर दीवार पे लिख कर रखना व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। सो नाउ आई हैव टू गेट डाउन टू दिस पार्ट कि लाइफ इज नॉट मियरली सांस लेना। तुम्हारा ईसीजी का टू 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 आवाज आ रही है, तुम्हारी पल्स रेट चल रही है, तुम्हारी सांस से आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, दैट इज नॉट मियरली लाइफ। लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। यही बाद में फ्रांसिस कोराले मुलिन केस वर्सेस यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली 1981-82, उसमें भी यही चीज को वापस एक और बार प्रोजेक्ट किया गया, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। मनेका गांधी केस इज अ मच ऑफन साइटेड केस एंड इट इज अ वाइड इंटरप्रिटेशन। अब मेरा सवाल ये आ रहा है कि मैं क्या क्या पढ़ूं एक साथ, इन द सेंस कि मेरे पास आर्टिकल 21 भी है जो मुझे बोलता है लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। सो मेरा प्रोटेक्शन वाला है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और अभी अभी आप लोगों ने बोला मुझे, मैंने तो यही सुना कि लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो मेरे पास ये दो लाइन आ गई। अब इसको पकड़ के रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं ये तुम्हारे ऊपर इस पॉइंट पर सवाल उठा देगा, बिकॉज मैं तुमको एक लॉ पढ़ा रहा हूं विच इज सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड। वैसे ये आईपीसी भारतीय दंड संहिता इज ऑन द वे आउट, राइट, लेकिन ये सिचुएशन है। तो हुएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड एंड डज एनी एक्ट टू वार्ड द कमीशन ऑफ सच एन ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year विद फाइन और बोथ। अब ये क्या चक्कर है यार, व्हाट इज द सिचुएशन हियर? द सिचुएशन हियर इज कि अगर तुम अटेम्प्टेड सुसाइड करते हो, तुम खुदकुशी करने की कोशिश करते हो और ऑब्वियसली अटेम्प्टेड है तो तुम बच गए, तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। यार मेरे लिए थोड़ी सी सिचुएशन डेंजरस होती जा रही है। आर्टिकल 21 से लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड बोलता है कि ना बाबा, तुम अपनी अगर लाइफ दे देते हो, तुम अटेम्प्टेड सुसाइड करते हो, तो देयर इज इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये स्टेट के लॉ के अगेंस्ट है। डू यू थिंक देयर इज ऑलरेडी अ कॉन्ट्राडिक्शन गोइंग ऑन इन दिस पार्ट कि ये लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी मेरी लाइफ है ना, माई लाइफ, इट इज अ पर्सनल राइट ना, देन हाउ इज द स्टेट, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द स्टेट डिटरमाइनिंग सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड? तो मुझे जो स्ट्राइक कर रहा है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर, क्या मुझे ऐसा एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, डोंट यू थिंक, या मुझे ऐसा लग रहा है, पूछने में क्या जा रहा है कि सेक्शन 309 कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कहीं ये मेरे आर्टिकल 21 के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा? आई होप यू रियलाइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिडल। ओके, तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू आर जुडिशरी एस्पिरेंट्स, यू आर ब्रेनी पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि हाँ सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 लिखा हुआ है एंड स्टेट जस्ट टुक अ स्टेप मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तुम्हें याद होगा पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी होती थी विच इज कॉल्ड द हार्म्स थ्योरी, मिल्स की हार्म थ्योरी थी। उसमें बोला था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्शन। एक काइंड ऑफ एक्शन इज पर्सनल रिगार्डिंग मी माई सेल्फ, ये मेरा पर्सनल डोमेन है, माई बॉडी इज माई कासल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मैं जो मर्जी कर सकता हूं। मी रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट हैज नो बिजनेस मेकिंग लॉ, लेकिन अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में देन स्टेट कैन मेक अ लॉ। स्टेट का रोल ही ये है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट का यही रोल है कि वो लॉ बनाए, लेकिन वो लॉ उन चीजों पे बना सकते हैं जिसमें मी रिगार्डिंग एक्शन, मेरा पर्सनल डोमेन हिट ना करे। मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें एक साथ स्ट्राइक करा रहा हूं। तुम्हें याद होगा राइट टू प्राइवेसी, आधार जजमेंट में जज जस्टिस के एस पुट्टस्वामी केस में था, तो जस्टिस चंद्रचूड़ की खुद की लाइंस थी कि यू कैन राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, वो मेरा पर्सनल डोमेन है। हाउएवर स्टेट उसके रिलेटेड लॉ बना सकता है अगर वो सेटिस्फाई करे तीन टेस्ट, तीन रिक्वायरमेंट्स। वन ऑफ देम हैज टू बी प्रोपोर्शनैलिटी, सेकंड हैज टू बी नीड, थर्ड हैज टू बी लीगैलिटी। ओके, अब भाई मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरी जिंदगी है यार, राइट, मुझे नहीं जीने का है, आई डोंट वांट टू लिव, मेरे को जाने का है, राइट। तो तुम लोग कौन हो तो लॉ बनाने वाले? तो ख्याल तो आ ही सकता है ना, हाँ सर, तो तुम लोग का ख्याल आता है। तो सेक्शन 309 आईपीसी को हम लोगों ने चैलेंज कर दिया इन द सेंस कि क्या राइट टू डाई इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21। ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। अभी हमने बोला आर्टिकल 21 से नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन अब मेरे मन में विचार ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राइट टू डाई कवर्ड होता है कि नहीं आर्टिकल 21 में। और जब ये क्वेश्चन आया तो हमारे पास एक केस आया विच इज कॉल्ड एज अ पी रथिनम केस।
सो दिस इज पी रत्नम केस, बड़े ध्यान से सुनना, राइट। एंड तुम्हें ऐसे वकील मिलेंगे जब तुम जुडिशरी की पोजीशन ले लोगे, तो तुम्हें ऐसे भी केसेस को डील करना पड़ेगा। पी रत्नम केस में सेक्शन 309 आईपीसी को चैलेंज किया गया। सो इट वाज चैलेंज माय लॉर्ड दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अगेंस्ट द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21, since article 21 gives me life as living with choice and dignity, and I think that right to die should be covered under article 21, and mixing up the two equations I think are section 309 IPC, जो कि attempted suicide को punishable offense बनाता है, my lord, I think it is article 21 के against. So P रत्नम केस में situation को समझो, look at here my arguments. So my argument say, my lord, fundamental right क्या होता है? Say fundamental right is the right to do something. Let's take an example. Freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression says, Article 19, subclause 1, subclause A says that I have the right to express my views, opinions and beliefs by words, writing, printing, painting, lithography, any other means except with the reasonable grounds of restriction. तो मैं बोलने की आजादी रखता हूं। अगर मैं बोलने की आजादी रखता हूं तो मैं नहीं बोलने की भी आजादी रखता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक। आई होप मैं तुमको रिलेट कर पाया। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आई हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मुझे विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया मूव करने की एबिलिटी, आजादी है, तो मैं घर बैठने की भी आजादी रखता हूं। इन अदर वर्ड्स, आई डोंट वॉन्ट टू मूव। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं मूव करता। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट फंडामेंटल राइट, दिस वाज द आर्गुमेंट. Fundamental right gives me the freedom to do something, that automatically says freedom not to do something is also encapsulated within the ambit of the definition of the fundamental right. तो अब मेरे यहां से हो गया, if I have the ability to, or the freedom to do something, I also have the freedom not to do something. So if Article 21 gives me freedom to live, fundamental right to live, then Article 21 also gives me right not to live. Voila! What an argument! I hope you realize this part. So P रत्नम केस की इतनी मोटी जजमेंट है, मैंने तुम लोग को उसको 2-3 लाइंस में समझा दी. P रत्नम केस was won, or rather argued successfully on this ground, that when you say fundamental right, then fundamental right is not necessarily something that you do. It is also that what you don't do is also allowed. And surprise or surprise, Supreme Court bought that argument, and Supreme Court accepted that, and Supreme Court said, correct, you are right. Section 309 IPC, in the situation and in the light of the arguments that have been placed before us, we consider that Section 309 IPC is violative of Article 21. What an argument, and what a school of thought, and what an understanding of this entire situation. So P रत्नम केस में गेम पलट गई. All right, in the sense Section 309 IPC को for at least a limited period of time, the entire situation went to the case over here. So the division bench of Supreme Court in P Rathinam versus Union of India held that a person has the right to die. Therefore, Section 309 of Indian Penal Code is unconstitutional and violative of Article 21 of the Constitution. What an argument, what a thought process, and what an important landmark judgment. लेकिन ये था 1994 का केस. सो यू कैन टेक द साइटेशन. 1994 का केस है. गो एंड रीड अबाउट इट. जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक बड़ी मोटी सी जजमेंट को मैंने तुम्हें बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, बट विदाउट मिसिंग एनी डिटेल्स एज मच एज इज रिक्वायर्ड. लेकिन ये बड़ा डेंजरस सा प्रीसिडेंट बनने वाला था. सो सून आफ्टर दिस 1996 एक और केस आया, एंड दैट केस वाज द ज्ञान कौर केस. सो ज्ञान कौर केस, आई एम सॉरी, so this is the Gyan Kaur case versus State of Punjab 1996. So Gyan Kaur case versus State of Punjab in 1996. Now ये एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट था. Now let me give you the facts of the case. Okay, in short, so Gyan Kaur was allegedly have charged with that she caused abetment of suicide. तुम्हें मालूम जैसे सेक्शन 309 IPC है, वैसे 306 इंडियन पीनल कोड भी है, विच इज अबेटमेंट टू सुसाइड. किसी को भड़का के, किसी को मजबूर करके उसको सुसाइड कमिट करवाना, खुदकुशी कमिट करवाना, इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस. फेयर इनफ. सो सेक्शन 306 IPC इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस, जैसे सेक्शन 309 अटेम्प्टेड सुसाइड है. अब ज्ञान कौर के ऊपर ये चार्जेस थे. शी वाज चार्ज्ड विद कि शी कॉज्ड द अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड ऑफ हर डॉटर इन लॉ.
अपनी बहू पे मजबूरी करे उसको किसी भी तरह से, जो भी होगा द फैक्ट्स, उससे उसको अबेट करके सुसाइड करवाया था। नाउ लुक एट द आर्ग्यूमेंट्स। सो पी रथिनम केस 94 में हो चुका है, 96 में ज्ञान कौर केस हैपेंस। पी रथिनम ने बोला है कि नॉट टू लिव इज एक्सेप्टेड अंडर आर्टिकल 21 बिकॉज करना, कोई एक्शन करना फंडामेंटल राइट होता है, तो उस एक्शन को नहीं करना भी फंडामेंटल राइट होता है। तो ज्ञान कौर केस में आर्ग्यूमेंट किया जाती है कि माय लॉर्ड, ज्ञान कौर ने गलत क्या किया? नथिंग, राइट? व्हाट हैज ज्ञान कौर डन? नथिंग। बोले ज्ञान कौर हैज डन नथिंग। बोले माय लॉर्ड, सेक्शन 306 इंडियन पेनल कोड, अबेटमेंट टू सुसाइड, ये तो अपने आप में आर्टिकल 21 की वायलेशन है। बोले कैसे? बोले मैंने क्या किया है? व्हाट हैव आई डन? I have just helped my daughter-in-law exercise her fundamental right of not to live. Not to live तो fundamental right है ना, तो उसका तो fundamental right था, तो उसमें मैंने क्या गलत कर दिया? How is it a punishable offense? Now this is a very simplistic understanding of the entire thing. I'm just trying to make fun of the entire situation. लेकिन keep it light to try and understand that ज्ञान कौर केस में that ratio जो पी रथिनम केस में आया था came under attack. क्या right not to live आप criminal केसेस में भी इन्वॉल्व यूज कर सकते हो? कैन यू यूज दैट रेशियो एंड यूटिलाइज इट ओवर हियर? एंड द आंसर ऑफ कोर्स वाज नॉट, राइट? सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द पी रथिनम केस एंड सेड नो, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट टू लिव और नॉट टू एक्सरसाइज योर फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ अ क्रिमिनल लॉ. It can be certainly utilized in case of, say, a medical condition, but it cannot be utilized in criminal law. And thankfully, the P. Rathinam case was overruled, and now it's still a gray area, right? Whether or not 309 or 306 of IPC is actually going against my fundamental right of Article 21 or not. But it opened a gateway. It opened a gateway to understanding फिर से what right to life is. इससे पहले कि तुम इस बात को और आगे चलो और मैं तुम्हें अरुणा शानबाग केस पढ़ाऊं, तुम्हें यह बात सोच के मुझे बतानी पड़ेगी कि राइट टू लाइफ तुम्हारे अनुसार एक नेगेटिव राइट है कि एक पॉजिटिव राइट है? क्विकली आंसर दो कमेंट सेक्शन में. ऑब्वियसली तुम लोग जुडिशरी एस्पिरेंट्स हो, तुम लोग लॉयर्स हो, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पार्ट. राइट टू लाइफ एज इन वॉट एवर वी अंडरस्टैंड इन आवर jurisprudence, is it a negative right or is it a positive right? Quickly answer. Negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. Hurry up. और कोई किसी को बोलना कि सर कुछ भी नहीं है तो भी आंसर दे सकते हो. ओके ओके. एंड ऑल्दो दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, बट मैं बाद में जरूर देखूंगा कि किससे नेगेटिव बोला और किससे पॉजिटिव देखा. द पॉइंट यहां पर यह है कि इट इज अ नेगेटिव राइट. राइट टू लाइफ हैज टू बी अंडरस्टूड इन अ वेरी वेरी डिफरेंट सिचुएशन. It is a negative entitlement designed to counteract factors that push individuals towards an untimely and unnatural demise. Premature death is deemed inherently unnatural, as when the opportunity for the continued life exists, humans naturally gravitate towards survival. Death in this context stands as an unnatural choice stemming from mindset that rationalizes the perceived comfort found in its aftermath despite the inherent pain associated with it. Let me shorten this for you. अगर given a choice or not, this is slightly complicated और तुम्हें थोड़ा बहुत jurisprudence समझ में आने लगेगा. So right to life is default क्या है? Default ये है कि मैं जिंदा रहूंगा, मैं जीते रहूंगा, मेरी लाइफ कंटिन्यूस रहेगी. Now please understand this entire situation. बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती जा रही है. मिल की थ्योरी के अनुसार स्टेट मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता. मेरी लाइफ पर्सनल डोमेन है. But is that so? The idea here is that it is a negative right, in the sense it is a negative connotation. State को बोला गया तुम मेरी लाइफ आर्बिट्ररी नहीं ले सकते. पता चले कि कल तुमने लॉ बना दिया एनकाउंटर करना अलाउड है. नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. तुम मेरे ऊपर आर्बिट्ररी कन्विक्शन करके बार बार सबको फांसियां दिए जा रहे हो, ये भी अलाउड नहीं. बट इज देयर एनी अदर वे जिसके तरह से स्टेट मेरी लाइफ को बढ़ा सकते? ना जी, तुम्हारी जिंदगी 50 साल की होनी थी, आज तुम मरने वाले थे. ना जी, स्टेट इसकी लाइफ 50 से 60 कर दे. सॉरी, दैट इज नॉट द वर्क ऑफ द स्टेट, दैट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. स्टेट कैन प्रोवाइड यू हेल्थ, बट स्टेट कैन नॉट एनहांस योर लाइफ. दैट इज नॉट योर पॉजिटिव राइट. यू कैन नॉट गो एंड आस्क द स्टेट कि मेरी लाइफ बढ़ा दो. तुम स्टेट को यह बोल सकते हो मेरी लाइफ घटाओ मत. सो इन अदर वर्ड्स इट इज अ नेगेटिव कनोटेशन. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑल्सो, अगर गिवन अ चॉइस तुम्हारे साथ सब कुछ हंकी डोरी हो, जिम डांडी हो, तो तुम क्या करोगे? So we will live, we will continue living, yes or no? So there are those people, for some reasons, some conditions में they start taking solace in something which is afterlife. पता नहीं है मरने के बाद सब कुछ ठीक होगा, okay?
इनफैक्ट अरुणा शानबाग केस में जस्टिस मार्कंडे काटजू की लाइन भी यही थी, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये लाइन मिर्जा गालिब की शेर उन्होंने यूज किया था, उनके जजमेंट का फर्स्ट लाइन था। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थॉट, एंड बिकॉज तुम जज बन रहे हो, तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस होना चाहिए, लेयर्ड होना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिचुएशन। सो राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट एम्बॉडीड इन आर्टिकल 21, बट सुसाइड इज एन अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ एंड इनकम्पैटिबल एंड इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ये एक थॉट प्रोसेस आई जा रहा है, एंड दिस ब्रिंग्स अस to a landmark case which is called as Aruna Ramchandra Shanbag versus Union of India 2011। अरुणा रामचंद्र शानबाग केस समझने से पहले मुझे तुम्हें इनके एक जीवन का बड़ा दुखद समराइजेशन देनी पड़ेगी। अरुणा शानबाग मुंबई के केईएम हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नर्स थी। 1970s, अर्ली 70s की बात है। किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में शी वॉज वर्किंग, और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई में, वहां पर ही उनके ऊपर एक सेक्सुअल मोलेस्टेशन, एक अटैक हुआ। वहीं के एक वर्कर ने उनके ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन, सेक्सुअल रेप किया उनको, और फिर उनको स्ट्रैंगुलेट किया। स्ट्रैंगुलेट, उनको एक चेन लेकर उनका गले को सब बंद, गला घोट के मारने की कोशिश की गई। उसको लगा कि अरुणा शानबाग की डेथ हो गई। अरुणा शानबाग की डेथ नहीं हुई थी, अरुणा शानबाग को ब्रेन स्टेम इंजरी हुई थी। ब्रेन स्टेम इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कंट्रोल्स द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड द कार्डियक सिस्टम एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो फॉर सम मिनट्स अरुणा शानबाग के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला, विच सेंट हर इनटू अ सिचुएशन जिसको कोमा बोला जाता है। मेडिकल कोमा हो गया उसको, और टेक्निकली स्पीकिंग परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट बोला जाता है। नाउ ये बहुत ही दुखद इवेंट के बाद एक बहुत ही ह्यूमैनिटी को एग्जाम्पल सेट करते हुए केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ ने कसम खाई, राइट, जितनी भी नर्सेस थी, जितना भी स्टाफ था, इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने कसम खाई कि हम अरुणा शानबाग का ख्याल रखेंगे जिंदगी भर। और अरुणा को दीदी बोला जाने लग गया, और केईएम हॉस्पिटल में उनके लिए एक रूम हमेशा के लिए रिजर्व कर दिया गया जहां पर अरुणा का ख्याल रखा गया। ऑल द वे फ्रॉम 1970 से ये चलता गया। तो ये भी नहीं कि उसी टाइम के स्टाफ, आने वाले भी जब भी स्टाफ आता था, ओके, जो नए भी ज्वाइन कर रहे केईएम हॉस्पिटल को, वो भी अरुणा का एक बहन की तरह ख्याल रखने लग गए। नाउ ये अर्बन लेजेंड है, ओके, मुंबई में, बॉम्बे में हर एक को ये बात मालूम है। अदरवाइज धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया एंड केम 2010। 2010 आते आते तुम ये भी समझ सकते हो कि बाकी सारी ठीक है, बट बॉडी धीरे धीरे एज होने लग गई, एंड अरुणा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लग गई। सो मच सो कि वो बिल्कुल ही वेजिटेटिव भी हो गई थी, बिल्कुल प्रैक्टिकली इमोबाइल हो गई। इस स्टेज पर उनकी एक मित्र सामने आई, और उनका नाम था पिंकी वीरानी। पिंकी वीरानी अरुणा शानबाग की मित्र थी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला एंड सेड, ध्यान से सुनना, सेड माय लॉर्ड काइंडली अलाउ अस यूथेनेसिया, right, we should be allowed euthanasia. What is euthanasia? Euthanasia is mercy killing. Mercy killing is कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है when life becomes worse than death, and in that case medical advice पर आप mercy kill कर सकते हो, you can kill that person. Now euthanasia दो तरीके का होता है। One euthanasia is called as active euthanasia, the other euthanasia is called as passive euthanasia. Active euthanasia is you do something to kill, ओके, आपको मौत देनी है टू डू समथिंग, और पैसिव यूथेनेसिया इज व्हेन यू डोंट डू समथिंग टू सेव। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं किसी को इंजेक्शन देकर, किसी ड्रग का ओवरडोज देकर, इफ आई गिव हिम और हर मर्सी किलिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव यूथेनेसिया। और अगर ऑन द अदर हैंड मैं उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया है, लेकिन मैंने उसको रिप्लेनिश नहीं किया और वो डेथ हो गई, then it will be, I'm just giving an example, that is called as passive euthanasia. Now सबसे पहले तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि sir why did you go to the Bombay High Court? The Bombay High Court, we went to Bombay High Court, number one, because there is no, or there was also no, there is no specific law on euthanasia in India. इस कंडीशन को लेजिस्लेटिव वैक्यूम बोलते हैं। तुम्हें याद होगा पीआईएल के टाइम पे भंवरी देवी केस, विशाखा केस वगैरह में ये सारी बातें होती हैं। इट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव वैक्यूम। इसके बारे में लॉ ही नहीं बना, क्या करें। सो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये बात गई कि माय लॉर्ड,
I am the next friend to, I hope you तुम्हें मालूम है कि when the party itself is not present for the matter, then the next friend on behalf of that party can file a petition. So Pinky Virani moved this petition before the Bombay High Court. Bombay High Court said no, right? We don't think we should be intervening in this matter. We don't think the matter is considerate enough to be allowing us or to take such a drastic step since it can be open to misuse. So Pinky Virani का ये matter Bombay High Court में does not hold ground. The matter is now sent to the Supreme Court in the form of the challenge to the Bombay High Court judgment, and the case becomes Aruna Ramchandra Shanbhag versus Union of India, the one which I was just mentioning, a two-judge bench. Okay, Justice Markandeya Kaju was on the bench at that time. ये केस में अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करो. So what is Pinky Virani saying? Pinky Virani is saying कि Aruna Ramchandra Shanbhag, so this is the room जहां पे Aruna Shanbhag was for the last 40 years, okay, prior to, before her death, was this is KM Hospital. Now Aruna Shanbhag इतने सालों से वहां पर 40 साल से भी ज्यादा हो गए के आसपास हो गए. Now she is merely breathing. उनका ECG चल रहा है, but this is not life with choice and dignity. Hence, उनकी आर्टिकल 21 की वायोलेशन हो रही है. आर्टिकल 21 ऑल्सो अलाउज, अगर हम लोग यूथेनेसिया नहीं अलाउ करते तो उनकी आर्टिकल 21 की वायोलेशन हो रही है, बिकॉज आर्टिकल 21 ऑल्सो कवर्स लाइफ विच इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. इट ऑल्सो कवर्स राइट टू डाई. Unbelievable. Do you realize the ambit of Article 21? So Supreme Court is now hard pressed to answer this very difficult question. Does right to die also gets covered under Article 21 or not? And Supreme Court, after considerable judgments, after considerable argument, finally comes to this conclusion. Yes. In extreme cases, on a medical board's advice, we may allow, please ध्यान से, we may allow passive euthanasia. So passive euthanasia का situation allowed है. In case of Aruna Ramchandra Shanbhag versus Union of India 2011, the court allowed for passive euthanasia under exceptional circumstances, under strict guidelines laid down by the court. Very important, very important. तो मैंने तुम्हें जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, राइट, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. सो ज्ञान कौर केस जिसने उसको नहीं इंक्लूड किया था, उसको अब डाल दिया गया अंडर अरुणा रामचंद्र शानबाग केस, दैट यस इट कवर्स और इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21. सो तुम्हें जितना भी मैंने अभी पढ़ा है ये सीक्वेंस में तुम्हें ये स्लाइड में मिल जाएगा. ओके, यू कैन ऑलवेज डाउनलोड दिस एंड यू कैन ऑलवेज कॉपी दिस पार्ट. सो एक बार आई एम जस्ट गोइंग टू रिकैप दिस एंटायर थिंग. द केस ऑफ पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिवीजन बेंच ने बोला था that it was unconstitutional as a violative of fundamental rights enshrined under Article 14 and 21. The court held that right to die was encompassed within the right to life. Gyan Kaur, we overturned this, and Aruna Ramchandra Shanbhag case, we came back to this. Now, however, there was a problem, and this is a very interesting problem. And the problem was, can we go back? So, very intelligent thought process. So, a pointed question was asked to Pinky Virani. Pinky Virani से एक pointed question पूछा गया कि पिंकी विरानी, ये बात तो हमें समझ में आ गया, ओके, कि यू हैव कम एज द नेक्स्ट फ्रेंड टू अरुणा. बोले यस. बोले यू वांट यूथेनेसिया? बोले यस. फॉर अरुणा शानबाग? बोले यस. बिकॉज अरुणा शानबाग का आर्टिकल 21 है? बोले यस. बोला आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? बोले यस. बोले राइट टू लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी? बोले यस. बोले किसकी चॉइस? व्हाट? किसकी चॉइस? राइट टू लिविंग, राइट टू लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, बट किसकी चॉइस? हुज चॉइस? अरुणा की चॉइस. अरुणा की चॉइस है ना. शी वांट्स टू लिव और नॉट टू लिव. पिंकी विरानी सेड यस. बोला अरुणा ने अपनी चॉइस तुम्हें पता ही कैसे? बिकॉज अरुणा तो कोमा में. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट, ऐसे पढ़ते हैं लॉ को. To understand what is happening within the court, then you understand this part. Okay, it's not an easy game over here. So you do appreciate this. किताबों से बाहर निकलो, लॉ को समझो, what happens in the four walls of the court, right? बोले किसकी चॉइस है यार? ये अरुणा रामचंद्र शानबाग की चॉइस है ना. आर्टिकल 21 तो उसका है.
सो जब आर्टिकल 21 उसका है और चॉइस उसकी है, तो उससे पूछो ना, हाउ विल यू टेल पिंकी विनानी या कोई भी फॉर दैट मैटर, तुम कैसे, यू कैन नॉट रिप्लेस, यू कैन नॉट पुट योरसेल्फ इन द शू ऑफ अरुणा रामचंद्र शानबाग एंड से कि उसकी चॉइस थी कि मैं मरना चाहती हूं, मेरे को यूथेनेसिया दो, वो तो बता नहीं सकती। सो जब वो नहीं बता सकती तो व्हाट, हु आर यू टू डिसाइड दिस? नाउ दिस, ऑल्दो उन्होंने इस कोर्ट में बोल दिया था पैसिव यूथेनेसिया अलाउ कर दो, बट ये एक मेजर क्वेश्चन मार्क छोड़ गया कि ये वाला केस में तो चलो जो हो गया सो हो गया। इनफैक्ट मैं तुम्हें सिर्फ जस्ट फॉर द फैक्ट ऑफ इट तुम्हें बता देता हूं कि अरुणा ऑल्सो पैसिव यूथेनेसिया की वजह से अरुणा की डेथ नहीं हुई, फिर वो बात अलग ही है, बड़ी ट्रेजेडी है कि अरुणा रामचंद्र शानबाग डाइड अ नेचुरल डेथ इन 2015, उनकी न्यूमोनिया से डेथ हो गई थी। मतलब इस प्रोसीडिंग के पहले ही ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ गया कि ये क्या है, अगर कल एक और मैटर आया और वो पर्सन कोमा में है, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो पता ही नहीं पा रहा है कि मेरी चॉइस क्या है, मैं जिंदा रहना चाहता हूं नहीं चाहती हूं, तो फिर हाउ डू यू एक्चुअली रिलेट टू दिस पार्ट? और ये केस को फाइनली सॉल्व किया, इस मेजर रिडल को सॉल्व किया in the 2018 judgment of the Supreme Court, which is called as the Common Cause versus Union of India 2018. So Common Cause versus Union of India 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सॉलिड जजमेंट दी, और उस जजमेंट में ये आया कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द फिनोमिनन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग विल. What is this called as? This is called as living will. What is a living will? So I hope everyone understands what a will is. Will is an instrument which works or which becomes activated only post-mortem. Do you know this? Yes. तो तुम जब वसीयत लिखते हो तो उसका एंटेमोर्टम इन द सेंस जब तक तुम मरे नहीं हो तब तक वो एक पीस ऑफ पेपर है जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता. Will can become active or will becomes a instrument which is executable only post-mortem, only after your death. तुमने जो कुछ भी लिखा है, मेरी प्रॉपर्टी फला फला को जाएगी, ओके, इतना हिस्सा इसको जाएगा, ये सिर्फ मरने के बाद ही लागू होने वाला है. आई होप दिस इज सिंपल. बट ये एक लिविंग विल है. डोंट यू थिंक ये ऑक्सीमोरॉन हो गया? राइट. लिविंग विल, लिविंग विल क्या हुआ? लिविंग विल इज कि जिस पर्सन के ऊपर जो ये लिविंग विल बनाता है, वो लिविंग विल वो एक एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव देकर जा रहा है, एक तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जा रहा है. दिस टाइम नॉट ओवर एनी प्रॉपर्टी और एनी वर्क टू बी डन, बट ओवर हिज ओन लाइफ. वो बोल रहा है कि यार मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसने के चांसेस है, टर्मिनल डिजीज है, कोई ऐसी बड़ी डिफिकल्ट सर्जरी है आ रही है, और ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं कि देयर इज अ चांस कि भाई तू है ना परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाएगा, तेरे को कोमा में चले जाएगा. तो भाई फिर ऐसी वो पुरानी वाली प्रॉब्लम ना हो जाए ना कि किसकी चॉइस, राइट? तो मैं तो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जा रहा हूं, तो वो पेशेंट, वो जो बंदा है, वो विल लिखा जाता है, वो एक एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव लिखा जाता है कि XYZ पर्सन, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, दोस्त रिश्तेदार जो भी, कि यार मैं ये डायरेक्टिव लिखकर जा रहा हूं. इट इज अ लिविंग विल, मतलब जीते जी, अभी मारा नहीं हूं मैं, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हूं, कोमा में हूं, या फिर जाने का चांस है, लेकिन दिस विल बिकम एक्टिव द मोमेंट ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यूथेनेसिया पे क्वेश्चन मार्क आ जाए कि यूथेनेसिया करना है कि नहीं करना है, मर्सी किलिंग करना है या नहीं करना. तो जिसके नाम पर वो डायरेक्टिव है, जिसके नाम पे वो डायरेक्शन है, उसकी चॉइस को मेरी चॉइस मानी जाए. और सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को एक लीगल सैंक्टिटी दे दी. सो दिस वाज अ ह्यूज थिंग. सो एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव एंश्योर्स दैट द विशेस ऑफ द एग्जीक्यूटर आर ऑनर्ड even when he is incapable of making a decision or the decision making part is not there. So ये क्विनलन केस था न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट में. ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने एक बार पहले भी होल्ड किया था कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऑलराइट, कि एक जो स्टेट का वो इंटरफेरेंस वाला पार्ट होता है ना, कि कैन द मैन बी आस्क्ड अलाउड टू डाई और नॉट, कैन यूथेनेसिया बी अलाउड टू और नॉट. तो बोला जाता है यार जब बॉडीली इंटेग्रिटी इतनी वीक हो जाती है ना कि यार अब जिंदगी रहे ना रहे, मौत आ ही रही है, या फिर उतना राइट टू लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी टाइप नहीं रहा, तो उस टाइम पे ना स्टेट को अपने आप पीछे हो जाना चाहिए, एंड राइट टू प्राइवेसी को है ना वो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए. इट्स माई लाइफ एट द एंड ऑफ दैट. हर जगह पे नहीं, यू कैन नॉट डू इट एवरीवेयर. ओके, कि यार छोटी छोटी बातों के लिए तुम बोलोगे यार सुसाइड हो रहा है, ये हो रहा है, जिम्मा, ऑल दैट स्टफ, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. हाउएवर, in some cases when body is about to go and it's all over, game is about to get over,
At that time, the state should take a back step and the privacy of the person, the independent right of the person should be enhanced. Hence, euthanasia should be allowed. So, Quinlan case को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज केस में बोला लिविंग विल इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल. एक छोटा सा इशू था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज केस में ये दिया था राइट टू प्राइवेसी, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इसमें राइट टू प्राइवेसी भी आ गया. ओके, मैंने तुम्हें बताया कि इज राइट टू प्राइवेसी मोर और इज द स्टेट्स इंटरफेरेंस इन योर लाइफ मोर. तो यू हैव टू नाउ अप्रिशिएट क्विनलन केस इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए इन न्यू जर्सी. दे सेड देखो मोर और लेस इट इज बैलेंस, बट ये जब PNL आ जाता है ना, प्रोपोर्शनैलिटी, नीड एंड लीगैलिटी, तो जब ये नीड ऐसे आ गई ना, यू शुड जस्ट टेक अ बैक स्टेप एंड लेट द पर्सन डिसाइड. तो ये रीजन, ये सब बहस हो क्यों रही है, बिकॉज अभी तक पार्लियामेंट ने अपने विजडम में कोई लॉ बनाया नहीं है. जिस दिन ये बना लेंगे उस दिन वी विल बी एबल टू डिस्कस द लॉ एंड थिंग्स वुड बी फार मोर क्लियर. अभी हम लोग चाह रहे हैं सारा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और जुरिस्प्रूडेंस के अराउंड करें, which at a later stage probably we won't need. So we don't have any specific law. लेकिन कॉमन कॉज केस में एक सिचुएशन बन गई थी. कॉमन कॉज केस में क्या हुआ था कि ये ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बना दिया था इन्होंने. जो लिविंग विल था वो था, that's a very welcome step, that's a big step. लेकिन वो जो स्टेप था राइट, वो उसको बनाना बड़ा मुश्किल था. मजिस्ट्रेट को बुलाओ, एफिडेविट लाओ, यार वो बंदे के फैमिली में इतना बड़ा मेडिकल क्राइसिस आया हुआ पड़ा है एंड एवरीबडी डज नॉट हैव द रिसोर्सेज, एवरीबडी डज नॉट नो हाउ टू फेच अ मजिस्ट्रेट एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो वेरी रिसेंटली इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर ने 2019 में एक पिटिशन डाली. वो बोले कि माय लॉर्ड, योर 2018 जजमेंट ऑल्दो इट्स मोस्ट वेलकम बट इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ सिंप्लीफिकेशन. सो वी मस्ट सिंप्लीफाई द प्रोसेस सो दैट इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस होएगा, देन द एंटायर जजमेंट बिकम्स इनफ्रक्चुअस. एंड सुप्रीम कोर्ट सेड करेक्ट, राइट, वी विल सिंप्लीफाई दिस. And the new Supreme Court order was sent for simplifying passive euthanasia procedure. So this was made passive. The passive euthanasia was allowed in 2018. In fact, it was allowed in rare cases and in exceptional cases in the Aruna Shanbhag case also. But here and now, after 2019, it has now been, or in fact, the petition was filed in 2019. Judgment came recently that it was, you have to make it simplified. Many of the things have been changed, all right, so as to make it process. So advancement. However, the bench headed by the then Chief Justice Deepak Mishra observed it was a constitutional obligation of the court to protect the right of citizens as enshrined under Article 21. An advanced medical directive would serve as a fruitful means to facilitate the fructification of the sacrosanct right to life living with dignity. So, ये acceptable हो गया, but recently इसको simplify किया गया. For instance, ये जो insurmountable obstacles है, वो directives क्या है, right? वो directives ही नहीं follow होंगे जब तक तुम उसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे. तुम्हें मालूम है उबी जस्ट इबी रेमेडियम. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ मैटर, इट रिक्वायर्स अ रेमेडी. सो देयर इज अ प्रॉब्लम, वी सीन अ प्रॉब्लम, सो वी हैव टू रेक्टिफाई. सो अभी क्या किया, सो पहले ये होता था कि मजिस्ट्रेट के पास लेकर आओ, राइट. अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जरूरत नहीं है. अब किसी नोटरी और गेजेटेड ऑफिसर से भी साइन कराओगे, दैट्स मोर देन इनफ. सो पहले ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अब सिंपल है. मोर देन वन गार्डियन और क्लोज रिलेटिव कैन बी नेम्ड इन द डॉक्यूमेंट, all of whom to be informed for this part. तो I hope तुम समझ सकते हो. किसी ने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दिया XYZ पर्सन को एंड बाय द टाइम उसका डिसीजन मेकिंग टाइम है, पता चला उनको कुछ हो गया या फिर ही इज नॉट प्रेजेंट, तो द एंटायर थिंग बिकम्स इनफ्रक्चुअस. तो इसको सिंप्लीफाई किया गया इन द स्पिरिट ऑफ दिस पार्ट. ऑल्सो एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड को बोला गया कंसिस्टिंग ऑफ ट्रीटिंग फिजिशियन and at least 2 subject experts of the concerned specialty with at least 5 years experience must opine in 48 hours whether passive euthanasia allowed है या नहीं. ये नहीं कि यार जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम फैसला करते रहेंगे. अगेन सिंप्लीफिकेशन, अगेन स्ट्रीमलाइनिंग. सो ये तुम्हें जजमेंट आया. और ये जजमेंट क्यों आ रहा है? ये जजमेंट तब तक आ रहा है जब तक देयर इज अ फिक्स्ड लॉ. जिस दिन पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया उस दिन हमको इतना बड़ा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी हेल्ड दिस दैट राइट टू लाइफ covers right to die. So there will be no problem. It will pass the judicial muster. All we required is simple guidelines with this part. So right to die with dignity was a fundamental right within the fold of right to live with dignity guaranteed under Article 21 of the Constitution. I think this is a beautiful definition of justice. So I hope you have understood this part, and this is the entire situation of the entire game over here. I hope you have understood this part and you enjoy this. In this limited period of time, right, I cannot discuss any further than this,
बट मैंने फिर भी कोशिश की इन द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम I did not leave any detail. I hope you have enjoyed this video. Please drop in a comment. I want to share, और तुम ये भी देखना चाहोगे, तुम ये भी बताना चाहोगे, if you want any specific topic to be discussed on your YouTube channel, I'll be happy to address those. Thank you very much. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.